Hello and welcome to Prop Tigers Right to Home online event where we will connect our prospective home buyers with reputed developers and their top projects across the country. I am your host Surbhi Gupta, and to help you pick the best property options in Gurgaon, we have with us esteemed panelists from Best Tech who will answer some of the most pertaining queries related to their projects in Gurgaon. I would like to welcome Mr. Samit Kumar. Welcome Thank you, from Survi, from for Prop having me on Tigers. this platform. From Prop Tiger, we have Mr. Ankit Khanda. Now, I would request our panelists to please introduce the company that they are presenting. Over to you, Mr. Kumar. Thank you, Surbi. Actually, I just want to tell Bestech Group was founded by Mr. Dharmender Bhandari and Mr. Sunil Satija in early 1990s. And we have completed like 25 million square feet, both in residential and commercial sector. And we also tied up with the international hospitality firm, which is Radisson chain. And currently, we are already running this five-star Radisson Blue hotels and Park Plaza in major five cities like Indore, Nagpur, Chandigarh, Gurgaon, and even Noida. Okay. And currently, we are just we are working in a residential and commercial sector in Gurgaon. Okay, that's great. That's great. Thank you for joining us. Mr. Ankit, please introduce the company that you're presenting. Hi everyone. Prop Tiger is the leading real estate company, which is operating pan India basis, and we deal with all A grade developers with under construction or ready to move in options. So we started our operation in 2011, and till now we cater 25,000 plus happy customers. So we start our services from understanding the customer, then giving them the option, scheduling the visit, flawless of closure process, documentation, post closure services like home loan, and your doorstep documentations. Thank you. Right, right. Thank you, Mr. Khanna, for joining us. Before we begin, let me show you some glimpses of Best Tech projects in Gurgaon. Here's a video for all our viewers. So that could be your future home. Let's begin our session. Mr. Kumar, tell us about your projects in Gurgaon and how they are different from each other. Currently, we are having three ready-to-move-in properties in New Gurgaon. If I say Bestech Parkview Ananda, Bestech Parkview Grand Spa, and Bestech Parkview Sanskruti. If I say Bestech Parkview Ananda, the sizes starts from, here in like 1360 square feet to 1810 square feet. And in Grand Spa, the sizes starts from 2660 square feet to 8,000 square feet. And a third project, which is Sanskruti, the sizes starts 1920 square feet to 2475. Here, the major difference is the sizes. If I say in Ananda, the sizes are very small, like 1360 to 1810 square feet. Then again, in Sanskruti, the size starts from 1920 to 2475, and Grand Spa, again, the sizes are like condominium apartments are there, and very limited in, apartments and villas are there. If I say in Ananda, in 13 acres,
there are 720 apartments. Whereas in Sanskruti, in 13 acres, 12.7 acres, we are providing 624 apartments. In Grand Spa, in 17 acres, there are just 599 families would be there. Wow. Wow. Okay. So I will direct my next question to Mr. Khanna. Since you are an area expert, tell us what are the benefits of investing in New Gurgaon? What our investors should know before investing here? So, I mean, there are a lot of end user who are coming here and showing interest in overall vicinity. So, and mostly, people who are working with, area like Cyber City or Udyog Vihar. And because they seems this is very approachable because the internal traffic of Gurgaon is currently is very high. I mean, if you want to travel from sector 45 to Rajiv Chowk, it will take 15 to 20 minutes. So if, if you are traveling from Cyber City to this place, New Gurgaon, so it's also, taking a similar time, 15 to 20 minutes, because first reason you're, against to the traffic, you are moving from, Jaipur side or Manisa side towards the this Cyber City portion. And, the second reason is you are connected to the highway. So this is the major another reason, which is the flowless traffic which is going through, and it's all habitated now. I mean the area which is having all the commercial malls, hospitals, schools, everything is there right now. So it's completely habitated, completely approachable. So a lot of end user who are coming here right now. Okay, okay. Mr. Kumar, so what are the USPs of your projects, and what is that one thing that home buyers like the most about Best Tech projects? What would you have to say about that? सबसे पहली चीज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूं, संस्कृति और ग्रैंड स्पा की बात करें तो हम जो इनके प्लॉट्स हैं स्क्वायर या बिल्कुल स्क्वायर प्लॉट्स में है, रेगुलर प्लॉट में है, तो जो एडवांटेज मिलता है कस्टमर्स को, एक तो जो फ्लोर प्लान्स है हमारे, क्रॉस वेंटिलेशन रहता है। अगर आप कोई भी अपार्टमेंट लेते हैं तो आपके दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में बालकनीज मिल जाते हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ हो या ईस्ट वेस्ट हो, तो सफिशिएंट सनलाइट रहती है अपार्टमेंट्स में, जो कि मेजर रिक्वायरमेंट रहती है कस्टमर्स की। और अगर बात करें बालकनीज, तो मेजर थीम हमारा बालकनीज का है। हम जो बालकनीज का साइज हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अराउंड 5.5 फीट से लेके 40-45 फीट लेंथ वाइज अगर बात करें, इतनी बड़ी बालकनीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपार्टमेंट्स में, जो कि अगेन बच्चों के लिए, इवन जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए काफी बेनिफिट देती हैं बालकनीज फ्लोर प्लान में। इवन स्पेसिफिकेशन वाइज भी बात करें तो हम हाई एंड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपार्टमेंट में। मॉड्यूलर किचन, अगेन डन बाय स्पेसवुड ब्रांड, इटालियन मार्बल प्रोवाइड कर रहे हैं, एसी फिटेड रहेंगे, तो ये चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपार्टमेंट में आज के दिन। Wow, wow. So Gurgaon is a very high-end market and the cost of investment is very high. So how is the ROI in terms of rent generation in New Gurgaon? Mr. Khanna, what would you like to say about that? So if you say, I mean, ROI portion in residential, sector, the ROI seems to around 2 to 3% maximum down the line. But what is the major, interest for a investor is the capital gain. Here, a lot of infrastructure is already, to a developing stage, which is, coming up with the another, connectivity, which is Dwarka Expressway. Approachable to this property through a multi-UT corridor which connects to Dwarka Expressway, and you're straight to airport like 15 to 20 minutes. So a lot of infrastructure which is coming up as per the location, which will boost the overall the capital of the property. Okay, okay. So one thing that we have noticed that today's buyer is very ecologically conscious. They want sustainable spaces. So as a Bestech as a brand, so what are the ecological practices, eco-friendly practices that you have picked up, Mr. Kumar, in your projects? अभी अगर मैं बात करूं अपने बेस्टेक संस्कृति की बात करें, 4 एकड़ का हम इंटरनल ग्रीन एरिया हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें लश ग्रीन एरिया, बच्चों के लिए प्ले एरियाज हमने दिए हुए हैं 2 अगर मेजर कॉर्नर्स में बच्चों के प्ले एरियाज ऑन सैंड पिट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन रेयर लॉबीज भी यूटिलाइज हो रही है किड्स प्ले एरिया के लिए। इसके बाद अगर बात करें प्लांटेशंस, 800 प्लस प्लांटेशन हम कर चुके हैं अभी कम्युनिटी के अंदर। तो ये चीजें हैं जो हम ऐड ऑन करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए।
Okay. So let's move on to our next segment. I would request our panelists to please walk us through their project presentation. Can we have the presentation on screen, please? Mr. Kumar, would you like to just explain? हाँ, अभी मैं चाह रहा था कि आप लास्ट पेज पे आए, जो कनेक्टिविटी अगर संस्कृति के मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं. Yes. Can we zoom this connectivity, please? Yes. So Sanskriti is on again on right bottom of sector 92. अगेन अगर आप देखेंगे कि दो मेजर रोड्स संस्कृति के साथ में ही है. 60 मीटर रोड जो कि सेक्टर डिवाइडिंग रोड है. अगर आप देखेंगे संस्कृति की जो सामने ही रोड जा रही है वो पटौदी रोड कनेक्ट कर जाएगी आज के दिन अगर आप देखेंगे बिल्कुल जो अपना लेफ्ट, अगर आप डाउन साइड आप रोड देखेंगे 60 मीटर, वो टी पॉइंट पे खत्म होती है. एक राइट अगर आप लेते हैं पटौदी रोड पे कनेक्टिविटी और मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो कि हार्डली 500 मीटर्स अवे है अपनी संस्कृति कम्युनिटी से. मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर जो कि मानेसर और द्वारका एक्सप्रेस वे को कनेक्ट करता है. इवन आपको कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से थ्रू सेंट्रल पेरिफेरी भी मिल जाती है. आज के दिन क्लोवर लीफ पे अभी ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हार्डली एक साल के बीच में ये भी ऑपरेशनल हो जाएगा. तो इससे होगा ये कि हम गुड़गांव सोना रोड की अगर बात करें तो बेटर कनेक्टिविटी हो जाती है इस लोकेशन की, सोना रोड से या एक्सटेंशन रोड या फरीदाबाद के लिए. इवन द्वारका एक्सप्रेस वे भी हार्डली 3.5 किलोमीटर दूरी पे है संस्कृति से. और द्वारका एक्सप्रेस वे पे भी काम चल रहा है, तो मे बी 2 साल के बीच में द्वारका एक्सप्रेस वे भी ऑपरेशनल हो जाएगा, जहां से फायदा ये हमें ये रहता है कि द्वारका 21 भी नजदीक हो जाएगा और अपना एयरपोर्ट जो कि हार्डली 20 मिनट लगेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन से एयरपोर्ट तक पहुंचने में, जो कि थ्रू यूईआर टू शिव मूर्ति पे जो कनेक्ट करता है रोड. अभी साइट लेआउट पे चलते हैं. अगर हम थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ साइट लेआउट पे मैं दे देता हूँ. सेकंड लास्ट पेज होगा सर भी. हाँ जी. जस्ट मैं थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रीफ, अगर आप ये रोड्स देख रहे हैं जो कि एक 60 मीटर की सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स है. अगर मैं बात करूं 92 के हम बिल्कुल राइट बॉटम कोने पे हैं. अगर आप प्लॉट एरिया देखेंगे तो पूरा स्क्वायर प्लॉट, जैसा कि मैंने बताया, स्क्वायर प्लॉट का फायदा ये रहता है कि एक तो जो टावर्स हैं वो सिमेट्रिकली अरेंज्ड है. डायरेक्शन बिल्कुल शार्प डायरेक्शन है. आपने अगर साइट लेआउट की अगर मैं बात करूं, राइट पे शार्प डायरेक्शन, शार्प ईस्ट डायरेक्शन है, लेफ्ट पे वेस्ट डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ नॉर्थ डायरेक्शन है, डाउन साइड पे साउथ डायरेक्शन रहती है. तो जो विंटर सीजन में धूप हर टावर में आएगी. इवन अगर आप बात करें ईस्ट में FG टावर में और ABC टावर में, साउथ से टावर H और टावर DE की तरफ, और वेस्ट जब सूरज वेस्ट की तरफ आएगा तो टावर ABC और FG टावर पे अपना धूप रहती है. पूरा प्रोजेक्ट बेसमेंट में है, डबल बेसमेंट, 1400 का पार्किंग स्पेस फॉर 624 अपार्टमेंट्स. तो ये कम्युनिटी भी बहुत लो डेंसिटी कम्युनिटी है. मतलब सिर्फ 12.7 एकड़ में सिर्फ और सिर्फ 624 अपार्टमेंट्स हैं. और कार पार्किंग स्पेस 1400 कार पार्किंग स्पेस बेसमेंट में प्लस 100 कार पार्किंग स्पेस आउटर पेरीफ्री में. आज के दिन 323 फैमिलीज ऑलरेडी शिफ्टेड मूव्ड इन. और बात करें जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें बात करें तो आज के दिन 11 शॉप्स हैं जो कि कम्युनिटी के अंदर हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं. क्ले का प्ले स्कूल है जो साथ में एंट्री करते ही, अगर आप कम्युनिटी की एंट्री देखेंगे तो साथ में ही क्ले का ऑपरेशनल स्कूल है. इसके बाद अगर बात करें ग्रीन एरिया, जो इंटरनल आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं वो 4 एकड़ का लश ग्रीन एरिया, जिसमें हम एक्टिविटीज, ओपन जिम, एम्फी थिएटर एरिया, प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लॉन टेनिस, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और क्रिकेट प्रैक्टिस एरियाज दे रहे हैं. इसके बाद अगर क्लब की बात करें जो कि 18,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, 3 लेवल पे बना हुआ है, बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. ग्राउंड फ्लोर पे आज के दिन ऑपरेशनल रेस्टोरेंट है, बुक कैफे, अपना फर्स्ट फ्लोर पे जिमनाजियम विद स्पा फैसिलिटीज, योगा एरोबिक रूम, कार्ड्स रूम, म्यूजिक रूम, ये अब फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं क्लब में आज के दिन.
इसमें क्लब की फैसिलिटी सारी ही जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताई सारी इसमें मेंशन है, जो कि प्रेजेंटेशन में। और फ्लोर प्लान्स आप चेक करेंगे, जस्ट आप दो फ्लोर प्लान्स अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, 1920 स्क्वायर फीट और 1995। 1920 जो डिजाइन हुआ है वो डिजाइन हुआ है धूप और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। तो अगर आप देखेंगे बालकनीज हैं, ये जो 1920 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है इसकी बालकनीज या ईस्ट या वेस्ट होगी या नॉर्थ एंड साउथ होगी। और स्लाइडिंग डोर्स जो बने हुए हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जो कि क्रॉस वेंटिलेशन में हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान पे। वहीं 1995 स्क्वायर फीट जो अपार्टमेंट है ये बहुत प्रीवीसी के लिए डिजाइन हुआ है और बेटर व्यू के लिए डिजाइन हुआ है। अगर हम जूम करेंगे 1995 में तो आप देखेंगे कि जो मेन गेट है उसके बाद दो अदर गेट्स आ जाते हैं, जैसे कि लिविंग का गेट, सर्वेंट क्वार्टर का गेट। अगर आपका लिविंग का गेट लॉक्ड है और अपना किचन का गेट लॉक्ड है तो मेड अगर आप खाना बनाने के लिए आपने लगाई हुई है तो वो अपना बाहर बाहर से थ्रू यूटिलिटी बालकनी किचन एक्सेस कर सकते हैं, अपार्टमेंट नहीं एक्सेस होगा। लिविंग डाइनिंग को हमने अलग अलग कर दिया ताकि प्राइवेसी मेंटेन हो डाइनिंग और किचन में। बालकनीज जो अगर आप देखेंगे मास्टर बेडरूम और किड्स रूम की बालकनी वो टेल साइड पे है, तो इसमें ये रहता है कि इसकी सभी बालकनीज इंटरनल ग्रीन की तरफ है, तो व्यू 1995 में बहुत ही बेहतर रहता है इस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान पे। वहीं अगर आप 4 बेडरूम की दो फ्लोर प्लान्स देख रहे हैं, 2325 और 2475। अगर 2325 की अगर मैं बात करूं, ये 4 बेडरूम विद 3 टॉयलेट प्लस सर्वेंट क्वार्टर प्लस स्टोर है। मैं जस्ट अगर जो अभी मैंने रिसेंटली 1995 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट जो बताया उसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें अगर बात करें साइजेस थोड़े लिविंग डाइनिंग का थोड़ा और बढ़ गया है, डाइनिंग एरिया का बढ़ गया है। और जो बेडरूम्स हैं वो अगेन 3 बेडरूम से 4 बेडरूम हो गए, थोड़ा ये एड ऑन हो गया है 2325। वहीं 2475 अगेन 1920 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अगेन अगर आप देखेंगे सर्वेंट क्वार्टर का एक्सेस हमने बाहर से ही दिया है, मेन गेट से बाहर ही है। तो अगेन वैसे ही सेम मेड अगर या सर्वेंट अगर एक्सेस करना चाहता है किचन से तो बाहर से ही थ्रू यूटिलिटी बालकनी एक्सेस होता है। और अगेन इसमें क्रॉस वेंटिलेशन ज्यादा बेटर रहती है क्योंकि स्लाइडिंग डोर्स अगेन हर रूम के ऑपोजिट टू ईच अदर हैं, तो ये बेटर रहता है इस फ्लोर प्लान पे 2475 में। Thank you, Mr. Kumar. So let's begin our question answers again. So, what is the down payment and what is the booking amount if somebody wants to book this unit now? And how is the entire payment plan look like? Actually, Surbhi, we are not rigid with the booking amount. It could be Okay. anything. If you can book apartment from 50,000 rupees to 3 lakh rupees, it depends again on customer. We are not rigid on that part. But again, down payment plan पे हम आज प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड आज के दिन हम रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी हर चीज हम करके दे रहे हैं अपार्टमेंट में। तो हम 2 महीने 2 से 2.5 महीने का टाइम दे देते हैं कस्टमर को, डिपेंडिंग ऑन की क्या अपने लोन अवेल करना है, कितना हमको टाइम चाहिए। तो 2 से 2.5 महीने में हम टाइम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। Okay. And what are the payment plans available for this uh, project? आज के दिन सुबह वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग ए डाउन पेमेंट प्लान। Okay. All right. We are left with only limited inventory. If I say 27 apartments left out of 624 apartments. So Okay. again, we are again very hurry to just अपना पूरी इन्वेंट्री खत्म करने का। इसके बाद हम दूसरे प्रोजेक्ट का भी ध्यान देंगे। और काफी पसंद आया लोगों को ये प्रोजेक्ट। अभी अगर मैं बात करूं, जो मेजर फैक्टर है कस्टमर्स का वो बच्चों को लेके ज्यादा है। बाइंग फैक्टर जो रहता है बच्चों के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि प्ले एरियाज बच्चों के लिए बहुत बनाए हुए हैं इसमें हमने। तो Okay. ये है कि अभी डाउन पेमेंट पे ही आज के दिन हम सेल कर रहे हैं प्रॉपर्टी। Okay. So, can you tell our viewers what are the precautions that you have taken to ensure safety in times like this when social distancing is a norm? लोगों को साइट विजिट करके आने में थोड़ी झिझक होती है, तो क्या precautions लिए हैं आपने? पहली चीज की जब भी कोई एंट्री रहती है, चाहे रेजिडेंट्स की हो या विजिटर्स की हो, प्रॉपर सैनिटाइजेशन रहता है व्हीकल्स का। इवन हैंड सैनिटाइजेशन भी रहता है एंट्री गेट पे। इसके अलावा टावर्स में भी जब एंट्री होती है तो अगेन हम प्रॉपर सैनिटाइजेशन करते हैं। ऐसा हर कॉर्नर पे आपको सैनिटाइजर मिल जाएगा। आपको मतलब इवन अगर आप कैरी नहीं कर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं आपको सैनिटाइजर मिल जाएगा। इसके अलावा कोई कस्टमर या रेजिडेंट बिना मास्क के रहते हैं तो हम इवन हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं मास्क आज के दिन। और इवन सेल्स ऑफिस में ही नहीं कि मीटिंग अगर ज्यादा लोग अगर विजिट करते हैं तो हम ऐसा ही नहीं है कि हम सेल्स ऑफिस में मीटिंग करते हैं। हमने अलग अलग स्पेसेस बनाई हुई हैं मीटिंग्स के लिए और इवन रेजिडेंट्स के लिए भी। तो वहाँ हम ये मेजर प्रिकॉशंस ले रहे हैं आज के दिन कम्युनिटी में।
ओके। आजकल बायर्स को जैसे रिमोट वर्किंग पे है, सबको घर से काम करना है, तो क्या हम्म। ऐसी कोई फैसिलिटी आपने अपने प्रोजेक्ट में प्लान करी है जो ऐसे टाइम पे, इस पैंडेमिक के टाइम पे इंश्योर हम्म। करे सेफ्टी एंड हेल्दी, इस टाइप की कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस के लिए? तो क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं आपके हम पास? टाइमली कोरोना टेस्ट भी करवा रहे हैं अपने कम्युनिटी के अंदर, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि इवन स्टाफ जो अभी जो काम कर रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, उनका भी फ्री कोरोना टेस्ट हो रहा है। इवन रेजिडेंट्स जो मतलब इंटरेस्टेड हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट रह रहे हैं। ओके। ओके, तो सो व्हिच, या प्लीज कैरी ऑन। जी 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 जी, आप पूछ रहे थे, बताएं। Yeah. So which banks have you tied up for financing purpose? अभी जैसे मैं बताया कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री स्टैम्प ड्यूटी हम करवा के दे रहे हैं। तो जितने भी बैंक्स हैं, लगभग जितने भी बैंक्स, अगर मैं बड़े बैंक्स की बात करूं तो हर कोई आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है इस कम्युनिटी में। पर अगर आप कहें कि हमने जो टाइड अप किया है बैंक्स के साथ, तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी से, जिसमें हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती कस्टमर को सबमिट करने के लिए। वो सिर्फ अपने ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं इन केस अगर आप प्रॉपर्टी यहाँ खरीदते हैं तो। Okay. So according to you, Mr. Khanna, how much return investors can expect in the next 5 years in a location like this? What would you say about that? So, I mean, somebody is looking for, proper investment purpose. So, I mean, the rental yield, what they can expect for a three-bedroom is around 30,000. Mm-hmm. And, the capital appreciation, what we are expecting is around 50 plus %, because again, I said that there are a lot of infrastructure development which is coming to this region. There is metro is also planned. So once this infrastructure is ready, I mean, what is required to boost the market, then automatically the capital appreciation will be done. Apart from that, there are a lot of commercial activities which is planned to near this project, or the vicinity. Even Bestech launched their own project by the name of Market Okay. 92. It's a huge commercial to the Okay. project, Okay. which is having a good retail, food, Mm-hmm. every facility, people can Right. enjoy over there. Right. 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 Okay. So you just talked about metro connectivity. I want to know what is the future of connectivity in a location like New Gurgaon. Starting with Mr. Kumar, what would you like to say about that? अभी की अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी सेक्टर 92 या 81 की अगर बात करूं, तो हम सबसे नजदीक हैं आज कमर्शियल बेल्ट, जो कि गुड़गांव की है 81 ए से लेके 99 ए सेक्टर तक। सबसे जो कि लंबी बेल्ट है पूरे गुड़गांव में, इंक्लूडिंग सेक्टर 88 जो पूरा कंप्लीट कमर्शियल है, जिसमें खुद बेस्टेक की 60 एकड़ प्लस लैंड है सेक्टर 88 में। तो डेफिनेटली जहाँ डेवलपमेंट है, कमर्शियल्स हैं, शॉप्स हैं, रिटेल्स हैं, वो अपना मेजर फैक्टर रहता है। उसके अलावा अगर बात करें मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर, जो कि मानेसर और द्वारका एक्सप्रेसवे की 135 मीटर वाइड रोड, वो भी आधा किलोमीटर के डिस्टेंस में है। द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि अगेन द्वारका 21 और एयरपोर्ट को कनेक्टिविटी हमें मिलेगी उससे, तो ये भी एक बेटर पार्ट रहता है। इसके बाद अगर बात करें सेंट्रल पेरिफेरी जो कि मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर एक्सटेंड होकर सेंट्रल पेरिफेरी बन रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है थ्रू अपना क्लोवर लीफ नेशनल हाईवे पे, और आपको कनेक्टिविटी मिलती है सोना रोड की। तो हम जो गुड़गांव है, जो एग्जिस्टिंग अभी गुड़गांव की बात करें, सोना रोड की बात करें, एक्सटेंशन की बात करें या गोल्फ कोर्स की बात करें, तो आपको बेटर कनेक्टिविटी आज के दिन भी मिल जाती है इस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो हम किसी पर्टिकुलर रोड पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर इवन इवन अगर मैं बात करूं द्वारका एक्सप्रेस वे पे, तो आज काम चल रहा है। पर अगर आज की बात करूं तो आज भी हमें पटौदी रोड, मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर या नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी है। Okay. Mr. Khanna, would you like to add something to this? Yes, definitely. I mean, I personally know some customers which are, having apartment in Best Tech, and they are into, such profile that they are, traveling late night to their home, Mhm. like, 1 a.m. or 2 a.m. in the night. So, but they are, safe to travel because this project is again on, main road, which is like sector dividing road in Gurgaon. Mhm. So they are safe, very safe to travel over there, and they are like per check post. They are, any facility in time of emergency. All things are available,
And apart from that, I want to add that their local transport, which is like another advantage to this location, which is already there. I mean, personally seen the blue line buses standing just near to the project. So I mean, the local transport is also there to connect IFCO Chowk or Hero Honda Right, right, right. metro. Okay, okay. So residential versus commercial versus retail. What would you suggest to an investor who wants to generate a regular monthly income from the investment? And will your answer be different if the investor's aim is to sell a property within the next 5 years, Mr. Kumar? एक्चुअली अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल या कमर्शियल या रिटेल, ये डिपेंड करता है कस्टमर के टेस्ट पे। रेजिडेंशियल की अगर मैं बात करूं, डिपेंड करता है। आप प्रॉपर्टी लें रेंट पे बहुत आसानी से, आज के दिन अगर मैं बेस्ट टेक संस्कृति की बात करूं तो बहुत आसानी से रेंट पे आपकी प्रॉपर्टी चढ़ जाती है। इसके अलावा कमर्शियल ऑलरेडी हम साथ में जो अपना मार्केट प्लेस आ रहा है, इसमें भी आपका बात करें, इसमें छोटा साइज है, इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा रहेगा। Right. रेजिडेंशियल में आपको पर स्क्वायर फीट रेट थोड़ा कम रेट पे और बड़ा साइज मिल जाता है, कमर्शियल में आपको ज्यादा रेट पे। और सिर्फ डिपेंड करता है टेस्ट टू टेस्ट आपको। वही है कि आपका अगर बात करें आरओआई की बात करें तो आपको मिल जाता है, आपको कमर्शियल में भी उतना ही मिलेगा और रेजिडेंशियल में मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपके बजट के हिसाब से और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। Okay, Mr. Khanna, would you have a same take or a different take than Mr. Kumar? Slightly different because commercial as per the current situation, commercial is somewhere as a dicey take as an investment, because we never know, there are a lot of offices which currently are in a empty side because of the work from home culture which is going on nowadays. So residential investment is always a safe bet. I mean, that population is not going to reduce; it keep on increasing. So people come to metro cities to work more. So population graph is keep increasing. The minimum rental you have to take home on a this monthly basis. And apart from that, definitely a capital gain on a gradually, as infrastructure, as the vicinity develop, as population grows, you can gain your capital gain also. Yeah, that's right. That's right. So, well, that was all we had time for today. Don't worry, our property experts are just one call away. Thank you, panelists, for joining. Thank you, viewers, थैंक for यू सो watching. मच। Feel Thank free you. to drop in your queries on our social media channels. We'll see you soon in the next episode of our Right to Home webinar. Till then, take care and happy home buying.